Hello friends, welcome back again in my YouTube class. So friends, today we are going to discuss class 7th NCERT integers. So that is the book which I am going to teach you, the introduction video. So in this video we will discuss about integers, that what are integers. So first of all, here we have the topic natural number, whole number, after the integer, type of integer, absolute value of an integer, adding of integer, subtracting of integer and division of integer. So here is a topic we have to study. So let's start. Firstly, the topic is that natural number. What is number? So friends, if we talk about number, if we talk about a number, so number is specially divided in three parts. This time I'm just talking about two parts. Okay, first part is natural number, and second part is whole number. I'm not saying that only two number have only two parts. There is lots of parts, integer and rational number, irrational number. This is also part of a number. Okay, but here we only discuss two part. Okay, what is natural number? If we talk about a natural number, so whatever number we will count, यानी जितने भी नंबर हम काउंट कर सकें. Okay, so let's counting numbers are known as natural number. It means all counting number are known as a natural number. So here we know that counting number is what? 1, 2, 3. I'm just writing an example here. 1, 2, 3, 4, 5. These all are counting number. So this is a natural number. And what is a whole number? Okay, when we add 0 with natural number. So what I'm write here, when we add 0 in with natural number, so it's become a whole number. It means जब हम whole number के साथ 0 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं? 0 ऐड करते हैं, then it's become a whole number. It means what? The counting number is natural number is that 1, 2, 3, 4 and 5 so on, बहुत आगे तक जाएगा, infinite तक जाएगा, ठीक है. But when we talk about whole number, so is that 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, lots of number of after 0. And one more thing. Now we know that the natural number is that all counting number is natural number, and we know that the whole number is 0 plus natural number is a whole number. Now here we have to study integer. So what is integer? First question is that what is integer? Integer क्या है? First question हमारा ये है. Okay, अब देखो क्या integer की definition मैं यहीं से बताऊंगा. इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया. इन दोनों को मैंने क्या किया? ज्वाइन कर दिया. जैसे ही इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, देखो बच्चों क्या हुआ, मैंने इन दोनों को क्या किया? ज्वाइन कर दिया. तो जैसे ही मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला? एक मिला नेचुरल इंटीजर. क्या मिला हमें? इंटीजर. अब ज्वाइन कैसे करेंगे देखिए. कैसे ज्वाइन करेंगे देखिएगा. कैसे ज्वाइन करेंगे देखिए. यहां पे सपोज हमारे पास एक बैग है, मैं इसको इरेज कर देता हूं. हमारे पास एक बैग है, ठीक. चलिए ऐसा कुछ बैग है. इसमें क्या है? 2, 1, 3, 4, 5. अगर ये बैग है, अभी ये क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर का बैग. किसका बैग? बैग ऑफ अ नेचुरल नंबर. एक और बैग हम ले आते हैं, या फिर क्या हुआ? चलिए एक और बैग लिया जिसमें क्या हुआ? 0 था. क्या था? 0 था. क्या था? 0 था. अब इस बैग को क्या किया? इसमें हम
जितना बैग में सामान था इसको इसमें डाल दिए, तो अब ये बैग क्या हो गया, अब ये बैग कुछ ऐसा बन गया। अब इसमें 1 2 3 4 5 के साथ 0 भी है, ठीक है, क्या है 5 के साथ 0 भी है। अब क्या हुआ, जब कुछ आगे बढ़ा तो एक और बैग मिला इसको, जिसमें क्या था -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर थे। तो क्या हुआ, इन सारे नंबर को भी इसी बैग में डाल दिया, तो ये बैग क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया ना। तो ये जो बैग है ना बेटा, ये बैग दैट्स कॉल्ड इंटीजर, दैट्स कॉल्ड इंटीजर। ये बैग क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। तो यहाँ से एक सिंपल सा डिफिनीशन हम बोल सकते हैं इंटीजर के लिए। ओके, तो एक सिंपल सा डिफिनीशन इंटीजर का क्या होगा हमारा, लुक एट हियर, अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर्स नेगेटिव। इट मीन्स क्या हुआ, अगर हम इंटीजर की बात करें, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, अगर हम इंटीजर की बात करें, ओके, सो इंटीजर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर्स इन नेगेटिव। इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है। यहां से कहने का मतलब क्या है कि ऑल द नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ऑल द होल नंबर इज इंटीजर एंड ऑल द नेगेटिव नंबर इज इंटीजर। बात समझ में आई। यहां से 3 कॉन्सेप्ट आते हैं कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो इंटीजर होंगे, जितने भी होल नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और जितने भी नेचुरल नेगेटिव नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, सब के सब इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, चलिए इंटीजर्स हो गया। अब यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। डिफिनीशन के बाद मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि आपको मैथ में रटाना पड़े। आई डोंट लाइक दिस थिंग कि मैथ इज नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट, इज अ प्रैक्टिकली सब्जेक्ट। सो प्रैक्टिकल करो, ट्राई करो, क्वेश्चंस करो। तो डिफिनीशन में नहीं लिखाना चाहूँगा आपको, कोई डिफिनीशंस के लिखिए। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ इंटीजर की बात करते हैं। टाइप्स की बात करें बच्चों तो हियर वी हैव स्टडी 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप के डिस्कस करेंगे। पहला तो हमारा है नेगेटिव इंटीजर्स। सेकंड है हमारा जीरो इंटीजर, और थर्ड है हमारा, थर्ड क्या बचा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो यहां पे हमें 3 इंटीजर्स पढ़ने, कौन कौन से, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव इंटीजर, सो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल अबाउट नेगेटिव इंटीजर like -1 -2 -3 and so on. This is example of a negative integer. Okay, positive integer, so positive integer 1 2 3 4 and so on. This is a positive integer. And tell me what about zero integer? Zero integer क्या है, कुछ नहीं है, सिंपली है जीरो। जीरो इज अ जीरो इंटीजर। अगर जीरो गिवन है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा ये कौन सा इंटीजर है, देन यू से सर सिंपली इट इज अ जीरो इंटीजर। सो आई थिंक यू क्लियर दिस थिंग्स। इंटीजर क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर क्लियर, होल नंबर क्लियर, इंटीजर क्लियर, टाइप्स ऑफ इंटीजर क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट absolute value of an integer. Okay, absolute value of an integer. Okay, so how can you find any absolute value of integer? So just look at here. If number is given a, I'm just giving an example. If number is
a or if number is minus a. ओके, बोथ वैल्यूज गिवन. मैंने क्या लिया, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक नेगेटिव नंबर ले लिया. मैंने ए लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, बी सी डी ई एफ जी एच, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील. सो हियर इफ नंबर इज ए एंड आर, इफ नंबर इज माइनस ए, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लिख इट हियर. ओके, दिस इज द वैल्यू. ये एक साइन हम यूज करेंगे. ओके, ये हम साइन यूज करेंगे. तो जैसे ही हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये ए के मॉड आ जाएगा. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मॉड ए. दैट्स अ मॉड ए. ओके, सो मॉड ए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए. नाउ अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ए, वैल्यू ऑफ माइनस ए, सो व्हाट, माइनस ए मॉड. यानी हमेशा जो टर्म है मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर कुछ भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस. मॉड के अंदर कुछ भी आ जाए, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी, मॉड के अंदर कुछ भी, ए बी सी डी, कुछ भी जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा. अदरवाइज इफ यू टेक एनी नेगेटिव नंबर इन मॉड, सो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव नंबर. रिजल्टेड इज दैट minus a mod minus a is plus a. Okay, so now the next okay, just giving more example like that. Okay, just look at here. I'm just taking a simple example about minus 4. So absolute value of minus 4, oh sorry, okay, absolute value of minus 4 is that minus 4 mod, so this will be 4. This is your answer. So this is the way how to solve any question if he asking me about the absolute value of any number. किसी भी इंटीजर के एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है तो आपको सीधे ऐसे ही कर देना है, मॉड में इंटीजर लिख देना है और मॉड के बाहर निकलता है. तो अगर वो नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, एडिशन ऑफ इंटीजर. देखिए मैं एक बात बता दूं, एडिशन और डिवीजन नहीं, सॉरी इसमें नहीं है, मल्टीप्लिकेशन. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में चलता है. जो इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एडिशन की प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो गई, वो एक जैसी होती है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी बिल्कुल एक जैसी होती है. जो चीज़ को फॉलो करेगा वही इसको फॉलो करेगा. ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. हम बात करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर की. एडिशन ऑफ इंटीजर्स. तो यहाँ पे मैं आपको सारी प्रॉपर्टी बता देता हूँ. अप्रॉक्स एडिशन में 5 प्रॉपर्टी है और फिर सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको 5 to 6 प्रॉपर्टी मिल जाएगी. तो जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये रही आपकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, 5 एंड 6. तो ये है आपके एडिशन की प्रॉपर्टी. मैंने यहाँ कुछ हिंट लिख रखा है जिससे आपको समझाने में थोड़ी सी ईजी हो जाएगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इट मीन्स से दैट इफ वी ऐड 2 इंटीजर सो रिजल्टेड इज ऑल्सो इंटीजर. इट मीन्स व्हाट, अगर हम 2 इंटीजर को ऐड करते हैं तो जिसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा. लाइक एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, अगर एक इंटीजर मेरा 1 है, 2 है और एक 3 है, तो अगर हम 2 + 3 करते हैं देन वी गेट 5 एंड 5 इज ऑल्सो अ इंटीजर. यही कह रहा है, क्या कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन. कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इट मीन्स दैट अगर दो इंटीजर्स हैं और उनको पहले हम फर्स्ट प्लेस पे 2 + 3 करते हैं या फिर 3 + 2 करते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा. थर्ड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरह ही है. जैसे यहाँ a + b + c या फिर a + b और +c करें तो भी रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब यहीं से थोड़ा सा
सॉरी ये यहाँ काटना पड़ेगा। ओके, तो यहीं पे थोड़ा सा देखिएगा, चलिए कोई नहीं, मैं बाद में उसको बता दूंगा। अब जीरो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इट मीन्स इफ वी ऐड जीरो इन एनी नंबर सो रिजल्ट विल नेवर चेंज। जस्ट सपोज अगर हमारे पास 4 है, 4 में हम जीरो ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो कोई चेंजेस उसमें नहीं होते, कोई चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। दूसरी बात करते हैं एडिशन इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। तो इसके बारे में देखिए, इनवर्स की बात कर रहा है, टॉकिंग अबाउट इनवर्स। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनवर्स? जस्ट सपोज इफ आई एम टेकिंग अ नंबर, ओके, जस्ट सपोज इफ आई टेक अ नंबर लाइक ओके, erase this one, 4. okay, if I take a number 4, so inverse mean is what? Just write a minus sign whatever number is given. okay, जो भी नंबर गिवन है उसके आगे आप माइनस साइन लगा दोगे तो वो क्या हो जाता है, उसका इनवर्स हो जाता है। तो जैसे 4 का इनवर्स ऑफ 4 अगर मैं बात करूं, इनवर्स ऑफ 4 तो क्या हो जाएगा, -4। क्या हो जाएगा, -4। तो इसको जब आप ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे तो देखिए 4 में ऐड करेंगे -4, तो बेटा बच्चा लोग हम जानते हैं रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। दूसरा, एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर। ये इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना है। सक्सेसर क्या होता है और प्रेडिसेसर क्या होता है, ये देखिए। सक्सेसर मतलब क्या होता है, एक आगे का। सक्सेसर मतलब क्या होता है, एक आगे का, और प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, एक पीछे का। तो देखिए यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं जिसका हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे। देखिए एक नंबर सपोज कीजिए, एक नंबर हमने चलिए 5 मानिए, बार बार 4 ही मान रहे हैं हम, 7 मान लीजिए। एक नंबर हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया। अब इसका हमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करना है। तो 7 का अगर हम सक्सेसर फाइंड करें, क्या फाइंड करें हम, सक्सेसर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 7 + 1 = 8। यानी जो है उसी में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। सक्सेसर मतलब एक टर्म आगे की बात कर रहा है। ठीक है। अब 7 का अगर हमें प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इस 7 में 1 माइनस कर देंगे तो 6। तो यानी अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहता हूं, कैसे भी इसको लिख सकते हैं, प्रेडिसेसर नंबर एंड सक्सेसर। ओके, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, प्रेडिसेसर नंबर और फिर उसके बाद सक्सेसर। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये चीज़ आ गई। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर देख लीजिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कहीं कहीं हद तक यहीं तक चलेगा, बट देखिए कुछ इसमें फॉलो नहीं करेगा। जैसे क्या नहीं फॉलो करेगा वो देखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पे कर दीजिए सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे कर देते हैं हम सब्ट्रैक्शन। ये भी लॉ आता है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन, ये भी एडिशन से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। बट जैसे वेट फॉर 1 मिनट, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ तो मैं मान सकता हूँ चलो a + b a - b करते हैं, या फिर 3 - 2 करते हैं तो 1 आएगा। और 1 एक क्या है, 1 एक इंटीजर है। ये बात तो समझ में आई। अब दूसरा जो है कम्युटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। यहाँ देखिएगा अगर हम a - b करते हैं तो b - a करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि नंबर सेम आए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता। लुक एट हियर, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। अगर मैंने क्या लिया, मैंने 4 में से 3 माइनस किया, रिजल्ट कितना आया, 1 आया। अभी मैं 3 में से फिर से 4 माइनस करूँ, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। तो -1 और 1 में बहुत ही क्या है, डिफरेंस है, बहुत क्या है, डिफरेंस है। तो ये क्या होगा, ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। सेम थिंग इसके साथ भी है, इसको भी ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरी बात, जीरो प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है। अगर हम 4 में से 0 घटाएं तो माइनस करें तो आना कितना है, 4 ही आना है। तो इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। एडिशन इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, हाँ इसको भी क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। देखो कैसे, अभी कोई नंबर दिया देगा तो
-4 देगा। -4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, +4। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 ही आना है, ठीक। तो यानी ये चीज़ें रही जो क्या होगा उसमें फॉलो करेगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.1 and maybe it's possible then I will take 2 exercise in one video. It may be possible because I don't want that video are so long, ठीक है, बिकॉज आपको और भी स्टडी करनी है, तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा जो वीडियो रहेगी वो छोटे से छोटे रहे। तो ओके, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी।